So reading from Srimad Bhagavatam 1.8.44 45. ताम्बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्ययम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः. Thus accepting translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Thus accepting the prayers of Srimati Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur. But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhishthir, who implored him lovingly. Purport. No one could make Lord Krishna stay at Hastinapur when he decided to start for Dwarka. But the simple request of King Yudhishthir that the Lord remain there for a few days more was immediately effective. This signifies that the power of King Yudhishthir was loving affection, which the Lord could not deny. The Almighty God is thus conquered only by loving service and nothing else. He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the loving affection of his pure devotees. तो भगवान युधिष्ठिर महाराज के अनुरोध के अनुसार रुक गए हस्तिनापुर में कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान केवल अपने शुद्ध भक्तों की प्रार्थना के कारण अपने डिसीजंस को भी बदल सकते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है। भगवान, लोग कहेंगे कोई भगवान का डिसीजन कैसे बदल सकता है? भगवान मतलब ही इज सुप्रीम कंट्रोलर, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, कहते हैं कि मैं भक्त का पराधीन हूं। मेरे भक्त जब इच्छा करते हैं तो मैं उनको एक्चुअली भगवान भगवान इसीलिए किसी को शुद्ध भक्ति नहीं दे, भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। भगवान ज्ञान दे देते हैं, वैराग्य दे देते हैं, और योग सिद्धि दे देते हैं, ऑपुलेंस दे देते हैं। एवरीथिंग कृष्णा गिव्स, but it is very difficult to get pure devotion from Krishna, because then Krishna becomes the sold out servant of his devotees. If Krishna, who is the supreme controller, becomes the sold out servant of a person, then this person becomes more powerful than God also. For other religions, it is very difficult to understand. लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल इन सनातन धर्म, दिस इज ओनली पॉसिबल इन भक्ति। भक्ति के अलावा और किसी मार्ग में आपको मिलेगा नहीं। तो भगवान सोल्ड आउट सर्वेंट हो जाते हैं। इसलिए भगवान, शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्त करना सबसे कठिन है। भगवान यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की रिक्वेस्ट को मानकर वहां रुक गए। यस, विल रीड सिद्धा प्रभु, आप पढ़ेंगे। Yes. व्यासर्धई ईश्वराज्ञे कृष्णानुभूतकर्मणा प्रबोधितो इति हर्षरे न्यायधूत सूचप्रीत. Translation. King Yudhishthira, who was much agreed, could not convince despite instruction by the great sages, aided by Vyasa and the Lord Krishna himself, the performer of the superhuman feats, and despite all the historical evidence. Purport. The pious king Yudhishthira was the mortified because of the massacre of the human beings in the battle of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhana was there on the throne, and he was doing well in his administration, and in one sense there was no need for the fighting, but on the principle of justice, Yudhishthira was to administration, and in one sense there was no need for fighting. Sorry, replace him. The whole psyche of the politics entered around the point, around this end point, and all the kings and residents of the whole world became involved in this fight between rival brothers. Lord Krishna was also there on the side of King Yudhishthira. It is said in Mahabharata Adi Parva 2.25 that 640,000 men were killed in
the 18 days of the Battle of Kurukshetra, and some hundreds and thousands were missing. Practically, this was the greatest battle in the world within the 5,000 years. The mass killing simply is to enthrone the Maharaj Yudhishthira was too mortifying, so he tried to be convinced with the evidence from histories by great sages like Vyasa and the Lord himself that fight was just because the mm, cause of just. But Maharaj Yudhishthir would not satisfied, even though he was instructed by the great personalities of time. Krishna is designated herein as the performer of the superhuman action. But this particular instance, neither he nor Vyasa could not convince King Yudhishthira. Does it mean that he failed to be a superhuman actor? No, certainly not. The interception is that Lord as a Ishvara or Supreme Soul. The heart of the both King Yudhishthira and Vyasa performed still more superhuman action because the Lord desired it. As a super soul king, Yudhishthira he did not allow king to be convinced by the words of Vyasa and other, including himself, because he desired that the king hear instruction from the dying Bhishma Deva, who was the another great devotee of the Lord. The Lord wanted that the last stages of the material existence of the great warrior Bhishma Deva see him personality and see his beloved grandchildren, King Yudhishthira, etc., now situated on their throne and thus pass away very peacefully. Bhishma Deva was not all the satisfied to fight against the Pandavas, who are the beloved fatherless grandchildren, but the Kshatriya are also very stern people, and therefore he was obliged to the take side of Duryodhan because he was maintained at the expense of the Duryodhan. Beside this, the Lord also desired that King Yudhishthira be pacified by the words of Bhismadeva so that the world could see that Bhismadeva excelled all in knowledge, including Lord himself. Yeah. Correct. थैंक यू प्रभु। सो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि भगवत गीता प्रारंभ होने से पहले कौन कंफ्यूज था? अर्जुन। एंड भगवत गीता समाप्त होने, युद्ध समाप्त होने से पहले अर्जुन कंफ्यूज थे, युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज थे, निराश थे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि इतने लोग केवल मेरे को राजा बनाने, मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोग मारे गए। कितने लोग? 640 लैक्स। 640 लैक्स, सिक्स, यानी 64 करोड़। 64 करोड़, आज तक किसी युद्ध में इतने लोग नहीं मारे गए। तो 5,000 साल में इतना बड़ा बैटल आज तक नहीं लड़ा गया। 64 करोड़ लोग 18 दिन के अंदर मरे हो। इतना खराब समय था। एंड युधिष्ठिर महाराज स्वयं को उसका उत्तरदायी मान रहे थे, क्योंकि उनको ही राजा बनना था। तो भगवान भी कन्विंस करना चाहते थे कि नहीं, ये तुमको राजा बनाने के लिए नहीं है, यह न्याय के लिए है। व्यासदेव भी आए कन्विंस करने के लिए, फिर भी युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं हुए। तो भगवान, क्या भगवान का यहां पर नाम दिया गया है, देखिए, अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा मतलब जिनके कर्म अद्भुत हैं, वंडरफुल है। उनकी कर्म, ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे भगवान जो इतने अद्भुत कर्म करते हैं, वो एक छोटी सी जीवात्मा को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ है, आपको राजा बनाने के लिए नहीं हुआ है, ये हुआ है आपको इस संसार को धर्म की स्थापना का पर्पस दिखाने के लिए, कि धर्म की जब स्थापना होती है तो उसमें उसके लिए कितने अधर्मियों का नाश करना पड़ता है। तो भगवान तो इस सिद्धांत को
स्थापित, भगवान तो कहते ही हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, है ना। तो परंतु भगवान, यस। जो मतलब युद्ध हुआ उसमें तो सारे अधर्मी लोग नहीं मरे, कुछ धर्मी लोग भी तो मरे। हाँ तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है? तो भगवान एक्चुअली, भगवान के सामने जो जो लोग मरे सबका उद्धार हुआ। तो एक्चुअली जिन्होंने इनका साथ दिया, पांडवों का साथ दिया, कुछ ने दुर्योधन का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया। तो जो कौरवों का साथ दिए वो तो सभी अधर्मी, ऑलमोस्ट सभी अधर्मी ही थे, कुछ अगर आप भीष्म पितामह और कुछ लोगों को छोड़ दें, बट बाकी सब लोग तो अधर्मी थे, उन सबका मरना तय ही था। इसके अलावा देखेंगे कि जो पांडवों का साथ दिए उनमें भी सब मरे। भगवान की खुद की अक्षौहिणी सेना थी, वो तो कहाँ से अधर्मी हो गई। तो नॉट ओनली लाइक दिस इज वन पर्पस, भगवान के केवल उस अवतार का केवल एक पर्पस नहीं है। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युद्ध में जो जो मरे उन सभी का उद्धार हुआ। तो वास्तव में देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ का लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम में वापस जाना। ह्यूमन लाइफ का लक्ष्य है भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागृत करना। तो चाहे अधर्मी मरे, चाहे वहां पर धार्मिक लोग मरे, वो सभी भगवान के दर्शन करते हुए या उस स्थान पर जहां पर स्वयं भगवान उपस्थित थे वहां पर मरे। इस वजह से भागवतम में ये श्लोक आता है, बाद में सभी लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई, सभी को जो जो वहां पर अपना प्राण त्यागे। तो वेदर अधर्मी, एक अधार्मिक व्यक्ति मरता है या एक धार्मिक व्यक्ति मरता है लेकिन भगवान के सम्मुख मरता है, तो वो धर्म और अधर्म के फेर से ऊपर उठ जाता है, उससे मुक्ति ऊपर उठ। मतलब प्रभु क्या है? मुक्ति मतलब उनको मतलब क्या भगवत धाम प्राप्ति हुआ ना मतलब? नहीं नहीं, और सबको मुक्ति मतलब सबको भगवत धाम प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन जो भगवान के भक्त के रूप में जिसने प्राण त्यागे, जो भगवान के भक्त थे, उनको भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे। लेकिन जो अधार्मिक हैं विशेष रूप से, उनको तो भगवान मुक्ति मतलब केवल लिबरेशन, मोक्ष, मोक्ष प्रदान करेंगे वो कुछ समय के लिए। जैसे शिशुपाल मरा था, तो शिशुपाल को भगवान ने स्वयं मारा था, शिशुपाल की आत्मा जाके भगवान के शरीर में समा गई, तो ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई उसी प्रकार से, इस प्रकार से। एंड उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो अधार्मिक लोग मरे तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। उनको कुछ समय के लिए जाने को कहाँ मिलेगा? उनको भगवान के ब्रह्मन में जाकर विश्राम करने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आएंगे फिर से। अभी उनका नया प्रारंभ होगा कि वो भक्ति का उनको अवसर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक बार भगवान के सामने प्राण त्यागे। अभी नेक्स्ट जब वो वापस आएंगे, लॉन्ग टाइम के बाद वापस आएंगे, बिकॉज मुक्ति में भी बहुत समय है। समय का कॉन्सेप्ट केवल पृथ्वी पर है, इसलिए वी आर इन ड्यूअलिटी, बिकॉज हमारे हिसाब से समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखें तो समय तो इनफाइनाइट है, अनंत है समय। तो कितने समय बाद वापस आएंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएंगे उसके बाद फिर उन्हें भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा। तो यस, लेकिन हाँ, युद्ध जब होता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं, एंड युधिष्ठिर महाराज इसीलिए तो दुखी हैं। और देर आर सम डिवोटीज ऑल्सो, दे lose life in the battle for assisting in the pastimes of Krishna, like भीष्मदेव। भीष्मदेव तो स्वयं अपने, उनके खुद के प्राण चले गए, मतलब अभी तो मरे नहीं है, अभी इस एपिसोड तक मरे नहीं, लेकिन मरने वाले हैं। जैसे उत्तरायण आएगा वो भी अपना शरीर त्याग देंगे। तो ये जो शुद्ध भक्त हैं, हम ये कह सकते हैं भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, अभिमन्यु, वो भी तो मरे वहां पर। ठीक है। तो यही अंतर है, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि एक जो भक्त होता है उसके जीवन में क्या परेशानियां आती ही नहीं है? क्या भक्त के जीवन में मृत्यु नहीं आएगी? क्या भक्त के जीवन में दुख नहीं आएगा? क्या भक्त के जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा या बीमारी नहीं आएगी? भक्त के जीवन में भी वो सब आएगा, लेकिन ये सब चीजें, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। नाउ एवरीथिंग इज कमिंग बाय द डिजायर ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग इज कमिंग नॉट बिकॉज ऑफ कर्मा। तो कर्म में कुछ और लिखा हो सकता है, लेकिन भगवान रिजल्ट बदल देते हैं एक भक्त के जीवन में, नंबर वन। नंबर टू, कर्म में कुछ लिखा होता है,
भगवान उसको कम करके देते हैं, कुछ खराब लिखा होता है भगवान उसको कम करके भी देते हैं। नंबर 3, कि कर्म में जो भी लिखा होता है हो सकता है सिमिलर फल मिले, लेकिन भगवान के सुपरविजन में मिलेगा, उसके द्वारा भगवान अपने किसी और उद्देश्य की पूर्ति करवाएंगे। भगवान किसी ना किसी तरीके से ये प्लान करते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास वापस आए, कैसे भी वापस आए। तो देखने में लगेगा जैसे कि कभी कभी भक्तों का एक्सीडेंट हो जाता है ना। और एक्सीडेंट में भक्तों की मृत्यु 2012 में मुंबई चौपाटी से बहुत सारी डिवोटीज गए थे यहाँ पशुपतिनाथ इधर, और उनका जो है हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश हो गया, एंड ऑल द डिवोटीज डाइड। एंड ऑल द डिवोटीज जो यहाँ पर थे मुंबई में, सभी परेशान थे, मीडिया वाले आ रहे थे, पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ, कैसे, और भक्तों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लोग, इवन भक्तों के मन में भी डाउट आ रहा था कि भक्तों के साथ कैसा हो सकता, कैसे हो सकता है कि भगवान कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं हम, और ऐसी दर्दनाक मृत्यु मिले, एक्सीडेंट में मरना घासली है। तो उस समय महाराज या बाकी डिवोटीज, महाराज जी का एक पुराना लेक्चर है राधानाथ स्वामी महाराज का, उसमें वो बता रहे थे महाराज के भगवान, लॉर्ड मेक्स श्योर that these devotees they get what they need. So when a devotee dies, then Krishna makes sure they get what they need. When a normal person dies, he gets what he deserves. This is what I heard from Vrij Vihari Prabhu. He is disciple of Radhan Maharaj. He has given, he was telling about this example. तो हालांकि युद्ध में आप समझ रहे हैं, दिस सेंटेंस इज वेरी डीप, कि जब एक भक्त मरता है, सेंटेंस। हाँ, when a devotee dies, he gets what he needs to reach to Krishna. And when a non-devotee dies, he gets what he deserves as per his karma. For a devotee, it is not karma. Devotee is not dying because of his karma. It is because Krishna desires that he dies and comes back to him. So all the devotees who died in this battle, they actually went back to Godhead. Those who were devotees. Those who are non-devotees, they were given the moksha, they were given liberation. There are 5 kinds of liberation. One of them is सायुज्य मुक्ति, जिसमें ब्रह्म ज्योति में जाकर जो लीन हो जाते हैं, वो है सायुज्य मुक्ति, जो एक भक्त कभी भी इच्छा नहीं करता उस मुक्ति की, क्योंकि उसके बाद तो उसके वो टेम्पररी मुक्ति है। इट्स नॉट परमानेंट मुक्ति, बट इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टाइम। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुक्ति, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, बट वी डोंट नो हाउ मच लॉन्ग टाइम, बट इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टाइम। तो सायुज्य मुक्ति का डिजायर नहीं करता डिवोटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दो प्रकार के लोग मरे। ये अच्छा क्वेश्चन है कि धर्मी भी मरे, अधार्मिक भी मरे, लेकिन उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है कि जो धार्मिक है, जो, या धार्मिक तो फिर भी एक एक थोड़ा लोअर टर्म है, लेकिन भक्त भी मरे। लेकिन जो भक्त गया, जैसे जैसे कि भीष्म देव अभी प्राण त्यागेंगे, तो भगवान के सामने प्राण त्यागेंगे वो, और भगवान के चरणों को अपने हृदय में लगा के, मतलब अपने हृदय में अपने मन का ध्यान भगवान के चरणों में लगा के वो प्राण त्यागेंगे। तो जो ऐसे प्राण त्यागेगा उसे तो भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। तो भीष्मदेव इज नो डाउट ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। सो यस, तो यहां पर एक प्रश्न तो ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान भी फेल हो गए, युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं कर पाए। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? भगवान अद्भुत कर्मणा नहीं रहे। भगवान तो अद्भुत कर्मणा हैं, थे, रहेंगे, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि वो यहां पर जो लिखा था, does it mean that he failed to be a superhuman actor? No, certainly not. The interpretation is that the Lord as Ishwar, or the super soul in the hearts of both King Yudhishthir and Vyas, performed still more superhuman action because the Lord desired it. तो मतलब भगवान से भी कोई कन्विंस ना हो जाए, ये तो अद्भुत कर्म है। ये तो और भी अद्भुत कर्म है कि भगवान किसी को कन्विंस ना कर पाए। और ये कौन कर रहा है? ये भगवान स्वयं कर रहे हैं। हाउ? बिकॉज ही इज सिटिंग इन द हार्ट ऑफ युधिष्ठिर।
in the form of Paramatma. Now he is inspiring Yudhishthir to not get convinced by himself as Krishna. Super Soul Krishna is inspiring Yudhishthir, who is a Jiva, to not get convinced by Krishna. So Krishna was successful to convince Arjuna after Bhagavad Gita, right? अर्जुन कन्विंस हो गए कि अभी मैं युद्ध करूंगा, मारूंगा सबको, राइट? लेकिन यहाँ पे कृष्ण फेल हो गए। तो कृष्ण तो कैसे फेल हो सकते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण फेल्ड कि एज अ परमात्मा ही इंस्पायर्ड युधिष्ठिर टू नॉट गेट कन्विंस्ड बाय हिमसेल्फ एज कृष्ण। सो दिस इज अनदर अद्भुत कर्मणा। इसको दैट्स व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। हु कैन अंडरस्टैंड कृष्णा? सो कृष्ण our acharyas understand krishna, so they are telling. नाउ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई भीष्म देव, क्योंकि भीष्म देव की इच्छा थी कि युधिष्ठिर राजा बने। लेकिन भीष्म देव किसी कारण से, लीला का पार्ट है भगवान की, तो भीष्म देव किसी कारण से एज एनिमिकल पार्टी के साथ वो लड़ रहे थे, उनका साथ दे रहे थे कौरवों का। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज उनके पास जाएंगे, भगवान स्वयं लेके जाएंगे, एंड फिर और उनको बोलते हैं कि आप सज के जाइए, पूरे राजा के वेश में जाइए। जब आप भीष्म पितामह के पास जाएंगे, तब भीष्म पितामह, अब आने वाली भीष्म पितामह की प्रार्थना जब आप उनको सुनेंगे, तो आप समझेंगे एक भक्त की प्रार्थनाएं और कितना डीप जा सकती हैं। तो भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बिकॉज भीष्म पितामह इज सच ए ग्रेट डिवोटी, सच ए ग्रेट डिवोटी। हरिदास ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो एक्चुअली कहा जाता है, हरिदास ठाकुर ने जो है इस प्राण उसी प्रकार त्यागे जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने त्यागे थे। उन्होंने भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखा, हृदय पे रखा, लिटरली, एंड ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। Just like Bhishma Pitama, he was looking at the face of Krishna and he left this world lovingly. So now he is going to glorify Yudhishthir, he is going to glorify Bhishma Pitama. Krishna is going to glorify Bhishma Pitama by taking Yudhishthir Maharaj to Bhishma Pitama. Yudhishthir Maharaj will get convinced by Bhishma Dev, not he could not get convinced by Krishna. So Krishna is Adbhut Karmana by convincing the whole world that this war was necessary. He convinced Arjuna that this war was necessary. But he is still Adbhut Karmana by not able to convince Yudhishthir that this war was necessary. So Krishna is still Adbhut Karmana. So this is the beauty of Bhagavatam, which we will see. Right? प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, जो महाभारत के बाद में पांडव लोग ने तो फिर वो स्वर्गारोहण किए थे, हाँ। मतलब ये तो प्योर डिवोटी है, हम तो यहाँ से मतलब वो भगवान का शुद्ध भक्त है। फिर वो स्वर्ग जाने का क्या मतलब है? वो तो भगवत धाम जाना चाहिए। और एक चीज, आप जो मुक्ति बोले, शायद उसमें भी एक चीज है, जो पांडव लोग स्वर्ग गए वहां पे वो दुर्योधन और सब लोगों को देखे थे, ये भी महाभारत में शायद मेंशन है। तो इसका क्या मतलब? ये तो कंफ्यूजन लग रहा है। यस। तो जी एक्चुअली महाभारत हम पढ़ेंगे तो महाभारत में ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन दिखाए। महाभारत एज ए लिटरेचर फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एज अ डिवोटी, यू विल फाइंड इट इज जस्ट लाइक एनी अदर धार्मिक लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, जहाँ पर पाप पुण्य इस सब के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। एंड देखने से ये भी लगता है, अगर आप हमारे आचार्यों की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हमारी गुरु परंपरा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि जो पांडव हैं वो धार्मिक लोग हैं। भक्त के का जितना महिमा मंडन भागवतम में मिलता है, भक्त का जितना महिमा मंडन हमारे आचार्यों के लिटरेचर में मिलता है, आपको केवल महाभारत पढ़ने से ऐसा नहीं दिखाई देगा। उन महाभारत पढ़ने से उनको आपको दिखाई देगा कि जो पांडव लोग हैं वो एक ठीक है पायस लोग हैं। एंड भगवान कृष्ण आए राजनीतिज्ञ, ऐसा ऐसा कृष्ण एज अ राजनीतिज्ञ उसमें ज्यादा दिखाई देंगे। तो महाभारत वगैरह पढ़ने के लिए वी हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम आचार्यस, जो हमारे आचार्य के लिटरेचर है कि किस प्रकार से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, वो सभी किस प्रकार से टीका लिखे हैं वो पढ़ना चाहिए। तो उसी में है एक पॉइंट कि स्वर्गारोहण हुआ। दिस इज स्वर्गारोहण इज अनदर पास टाइम एक्चुअली, दैट स्वर्गारोहण इज एक्चुअली टेम्पररी फेस फॉर पांडवास।
तो दिस लुक्स लाइक एक एक करके वो सभी स्वर्ग में गए, एंड देन स्वर्ग में जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर दुर्योधन भी बैठे हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो इंजंक्शंस दिए गए हैं, वो इंजंक्शंस इन जनरल, जब भी डिवोटी आते हैं या भगवान आते हैं स्वयं अवतार लेते हैं, दे डोंट डिनाई द इंजंक्शंस, दे डोंट, यू कैन से, उसको गलत सिद्ध नहीं करते हैं, सिद्ध नहीं करते, दे डोंट प्रूव दैट दीज ऑल आर रॉन्ग। सो हमारे शास्त्रों का इंजंक्शन है कि जो युद्ध भूमि में एक सैनिक के रूप में अपने साहस के साथ क्षत्रिय अगर कोई प्राण त्यागता है, शहीद होता है, जो कहते हैं ना, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दीज ऑल दुर्योधन एंड ऑल, दे वर एक्चुअली वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स एंड ग्रेट क्षत्रियाज ऑल्सो, दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। सो दिस इज ऑल्सो द इंजंक्शन ऑफ शास्त्रा, कि उनको स्वर्ग मिलना चाहिए एज पर दैट। तो युद्ध भूमि में जो भी प्राण त्यागता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो स्वर्गारोहण उस हिसाब से वो ठीक है, बट उसके बाद, स्वर्ग के बाद क्या होगा? स्वर्ग के बाद उनके पापों का फल भी मिलेगा। स्वर्ग उनको एक कर्म के लिए, तो आपको अगर याद हो, हमारी एक क्लास हुई थी, श्रीनिताय प्रभु ने एक क्लास दी थी, जब बेसिक्स ऑफ गीता पढ़ाया था, कि हमारे कर्म और हमारे पुण्य और पाप के जो दो झोले हैं, वो दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि पुण्य जो है पाप को कैंसिल कर देता है या पाप पुण्य को कैंसिल कर देता है, दोनों अलग अलग मिलते हैं। तो तो पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य का फल अलग मिलेगा। तो इनको जो पुण्य इन्होंने प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करके, तो उसका उनको फल मिला, बट उसके बाद क्या होगा? वो जाएंगे नरक में दुख भोगने के लिए। एंड और जो पांडव हैं, उनको भी आप देखेंगे कि उन्होंने भी बहुत एक्चुअली, पुण्य तो हम सभी कर रहे हैं एज अ डिवोटी, इसीलिए तो कहते हैं अगर आप शुद्ध भक्त नहीं बन पाए तो आप एक पुण्यवान व्यक्ति बन जाएंगे, और पुण्यवान व्यक्ति बन जाएंगे तो आप भी स्वर्ग चले जाएंगे मृत्यु के बाद। हम सब स्वर्ग चले जाएंगे, तो हमारे जो हमने इतना भक्ति की, वो सबका फल तो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर आप स्वर्ग चले गए तो 4 5 6 हजार साल तो फिर वहीं रहेंगे, फिर वापस लौट के आएंगे, तब तक देखेंगे और कलयुग बढ़ जाएगा। और कलयुग बढ़ गया तो उसके बाद तो फिर और मुश्किल हो जाएगा भक्ति करना। तो इसलिए यही मौका इस लाइफ टाइम में ही चले जाना है। तो एनीवेज, इस साइड वाइज पॉइंट है, बट युधिष्ठिर महाराज और पांच पंच पांडव, जो पांचों पांडव का दिखाया है, वो सभी, और द्रौपदी भी, वो सभी स्वर्गारोहण किए। बट दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेरी फेज, वो कुछ समय के लिए, जस्ट दिस, ये पास टाइम है, एक पास टाइम भी है भगवान का। सारी दुनिया के लिए ये समझना मुश्किल है, लेकिन हमारे आचार्यों की टीका है कि यहाँ से दिस इज जस्ट टेम्परेरी, उसको दिखाया भगवान ने, उनको दिखाया कि हाँ, कि दुर्योधन भी वहां बैठा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज गए वहां, देखा दुर्योधन पहले से ही बैठा हुआ है वहां पर, तो वो भी डाउटफुल हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। वास्तव में उनको अपने पुण्य कार्य का फल मिला, दुर्योधन को, क्योंकि उसने वीर गति प्राप्त की। और भगवान ने पांडवों को भी लेके गए, उनको उन्होंने स्वर्ग का कुछ समय के लिए दर्शन करवाया। और उसके बाद इमीडिएटली ही वेंट बैक टू गोलोक वृंदावन, जो भी जो भगवान का जो धाम है वहां पर, वो वापस चले गए एज एटर्नल, दे आर एक्चुअली eternal devotees of Krishna. So they went back. So this is how we understand from Acharya's point of view. Yes, bro. Okay. ठीक है ब्रो। हाँ, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।